Good morning, dear friends. Once again, let us start with our topic alternate current. So, friends, last lecture we have discussed the starting for the LCR circuit. So, I hope you have understood that. And today we will once again start with the discussion about the LCR circuit. So, we will start with series LCR circuit. It's very important as the exam point of view. Problem solving also it is VIMP. So I will recommend you to make it VIMP 5 star and you have to study it well. So series LCR circuit, the analysis can be done into two ways. One is called as analytic solution. One is called as analytic solution and another is called as phasor solution. So first let me draw the diagram for the LCR circuit. This is my inductor, this is my capacitor and this is my resistor. Okay beta. So I have applied AC. So this will become my L. 1 minute. Let me do it correctly. थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है. Diagram must be. It must look very good ना. तो ये आप पढ़ोगे नहीं तो पढ़ोगे नहीं आप. Okay. So this is. I'll start with. It has two solutions. Phasor solution and analytic solution. So first let us start with the description. So consider inductor. मैं क्या करता हूँ यहाँ से ही चालू करता हूँ तो आपको पूरा बोर्ड यूज करने के लिए मिलेगा. ओके. यहाँ पे दो सॉल्यूशन होते हैं. पहले मैं लिख के रखता हूँ. एक होता है फेजर सॉल्यूशन, दूसरा होता है एनालिटिक सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मतलब इसके लिए जो करंट वगैरह we will find out. Solution means that how to find out the current, how to find out the voltage, everything about that. So that will be a solution. Okay. So I'll start with the derivation. Let's start with the derivation. Consider an inductor of, लिख नहीं रहा है शायद, inductance L, capacitor of capacitance C and a resistor of resistance are connected in series. So this is my first equation, first statement. तो मैंने क्या किया? Inductor of inductance L, capacitor of capacitance C and resistor of resistance R. I have connected them in series. इसके बाद में क्या करेंगे? Suppose AC voltage is applied to this combination. AC voltage is applied to this combination. Therefore, we can write. क्या लिख सकते हैं बेटा? E is equal to E naught sin omega t. This is the applied AC voltage. I will call it as equation number 1. So, the solution for the same can be got from the phasor diagram and can be got from the analytic. Okay. So first we will study. At the exam you are supposed to do either phasor or analytic. लेकिन मेरा ड्यूटी बनता है कि आपको दोनों भी सॉल्यूशन में दिखाऊं. कौन सा भी एक सॉल्यूशन आपने लिखा तो भी चलता है. देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके. सो कीप इन माइंड दैट. तो पहले हम फेजर सॉल्यूशन लिखते हैं. फेजर सॉल्यूशन में क्या बनेगा आपका? तो आई नो दैट. ओके. सपोज
इसको ये मेरा एनालिटिक के लिए ई यूज करूंगा, अभी अपना फेजर के लिए मैं उसको वी यूज करता हूँ। जैसे मैंने कल आपको, सेम है, दोनों भी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं। एक जगह मैं उसको ई बोला है, पहले से ई बोल रहे थे इसलिए मैंने उसको ई बोल के किया। ओके, अभी यहाँ पे हम लिखेंगे एल, यहाँ पे सी और यहाँ पे आर, एंड सपोज आई हैव applied the voltage. So this is L, this is R, this is C, and this total voltage I will call it as V. इसको बोलेगा मैं VL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये बोलेगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो व्हाट विल बी द आउटकम? Therefore we can write V is equal to VL plus VC plus VR। क्या बन गया? VL is equal to VL plus VC plus VR बन गया बेटा। ओके, नाउ नंबर 1 VL, okay, voltage across inductor, and what I considered, I will be constant. This is important. IMP लिखता हूँ इसको, I is equal to constant। अगर I constant है तो वोल्टेज अक्रॉस L कैसे लिखेंगे? करंट I into कितना? रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो I इंटू क्या बन जाएगा? XL बन गया। दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, एंड ये XL क्या बन जाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, और ये करंट बन जाएगा। सेकंड VR क्या बन जाएगा? I इंटू R, मैंने बताया था आपको। थर्ड क्या बन जाएगा? VC क्या बन जाएगा? VC करंट I इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। Okay, so I can continue where XL is equal to inductive reactance, इसी को ही बोलते हैं resistance offered by inductor, और इसको बोलते हैं capacitive reactance। तो ये क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। उसका वैल्यू भी अपन को मालूम है, XL कितना है? ओमेगा N, एंड XC कितना है? 1 बाय ओमेगा C। तो ये आपको कल के लेक्चर में मैंने बताया था, कल परसों के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम एक बाजू को लिख के रखते हैं, समझ गए बेटा? तो भी क्या करना है? ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूं? ये VL जो है, VL की जगह मैं I इंटू XL लिखूंगा। ओके, तो मेरा कैसे बन जाएगा? सो दैट वी विल सी। ओके, और ये जो करंट है विच इज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट करंट है, इसको बोलेंगे वी विल टेक I टू बी इक्वल टू IM मतलब पीक वैल्यू I नॉट। जैसे हम V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे, वैसे ही हम I को लिखेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी। साइन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, वो बाद में, लेकिन I नॉट क्या बन जाएगा? I नॉट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। I नॉट विल बी पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो यहाँ पे भी वो जो मैं निकालूंगा, whatever the voltage I will calculate across the inductor, whatever the voltage I will calculate across the resistor, and whatever the capacitor, and whatever the voltage I will calculate across your capacitor, everything, whatever, that will be calculated by using my peak current। तो यहाँ पे मैं I की जगह उसको I नॉट लिखूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? तभी क्या करेंगे, मेरे पास इक्वेशन है, इक्वेशन 1 को मैं यूज करूंगा, इक्वेशन 2 बन गया ना, ये इक्वेशन 2 बन गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2
क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू आई नॉट एक्स एल प्लस आई नॉट इंटू आर प्लस आई नॉट इंटू एक्स सी। बन गया, बन गया, ये मैग्नीट्यूड में बन जाएगा। अगर आपको उसका फेजर निकालना पड़ेगा तो कंबाइंड फेजर आपका बनता है, ओके, ओनली मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, ओनली मैग्नीट्यूड। बट इफ वी कंसिडर फेजर देन वी गेट, क्या मिलेगा अपन को, V मिलेगा आपको आई नॉट इंटू आर प्लस आई नॉट इंटू एक्स सी माइनस आई नॉट इंटू एक्स एल। क्योंकि ये जो है ये मेरा VL बन जाएगा और ये मेरा VC बन जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूँ फेजर तो VL आएगा। अभी दिखाता हूँ आपको, अभी इसका फेजर निकालते हैं, इसका फेजर निकालते हैं, ओके बेटा। तो यहाँ पे इसका हम फेजर निकाल के देखते हैं। तो फेजर कैसे बनेगा, तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, फेजर सॉल्यूशन यहाँ से चालू किया, डायग्राम निकला, ये मैग्नीट्यूड लिखा आपका, ओके, यहाँ पे लिख लिया, लेकिन मेरा कैसे आएगा एक्चुअली, ये ऐसे आएगा, इसको मैं बोला VR, इसको मैं बोला VC और इसको मैं बोला VL, ये आपको समझने के लिए, बराबर। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो निगेटिव साइन क्यों आता है दिखाता हूं, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा फेजर लिखने के लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। तो पहले आएगा मेरा, पहले बन जाएगा मेरा, ओके, ठीक है, इसको ठीक से निकालता हूं मैं, ओके, ये हटा देता हूं, इसको बड़ा वाला बनाता हूं, ओके, मेक इट बिग साइज। तो यहां पे बनाते हैं, आप भी ठीक से उसको लिखो, एक ही बार अपने नोटबुक में उसको नोट डाउन करो, बल्कि आपको बाद में उसका यूज हो जाएगा, ओके, ठीक है, ओके। फेजर फॉर सीरीज LCR। तो क्या करेंगे, पहले हम तीनों का वेक्टर बना के लेंगे। पहले इसका भी स्टडी करने के लिए आप उसको स्टडी करो, इक्का दुक्का करके स्टडी करो। फर्स्ट यू स्टार्ट विथ रेजिस्टर। रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाएंगे, बन गया। इंडक्टर के लिए करंट लीड्स द वोल्टेज, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/2। यहां पे मैंने क्या लिखा है, इसको यहां पे लिखा मैंने VR। ये क्या लिखा मैंने, ये मैंने I का नहीं दिखा है, इसमें खाली V का दिखा है। ये सब सेम है, जो आपने E लिखा था, E नॉट, यहाँ पे मैंने VR लिखा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे अपन को 3 सीखना है। तो मैंने पहले रेजिस्टर लिया, रेजिस्टर में क्या था, बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो बेसिकली एट फर्स्ट रेजिस्टर का जो है मैंने उसको ऐसा बना दिया, खत्म हो गया, ओके। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, क्योंकि अपन को उसका ये भी लेने का है, बाद में उसका क्या बोलते हैं रिजल्टेंट भी लेना है, थोड़ा उसको मैं ऐसा लिख के दिखाता हूँ, तो आपको समझने के लिए कुछ दिक्कत नहीं आएगा। ओके, अभी जाते हैं आगे के लिए। अभी ये हो गया VR, तो इसको मैं VR करके लिख देता हूं, VR। दूसरा आएगा मेरा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/2। तो उसके उल्टा क्या आएगा, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय π/2। बल्कि यहां पे कैसे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, यहां, आर गेटिंग माय पॉइंट। तो
will get my VL as perpendicular to VR. VL कैसा बन जाएगा? Perpendicular to VR. तो यहाँ पे उसको मैं लिख देता हूँ VL. क्या मैं लिख दिया उसको? VL लिख दिया. और जो मेरा VC आएगा, whatever my VC will come, that will be देखो अभी कैपेसिटर के लिए करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2. इसके उल्टा क्या आएगा? करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2, मतलब वोल्टेज विल लैग बिहाइंड द करंट बाय पाई बाय 2. तो वहां पे ये जो मेरा वोल्टेज लिखूंगा दैट विल कम लाइक दिस. तो ये बन गया मेरा VC. You have to keep in mind. तो यहाँ पे I suppose that you have noted this down, so I will rub this all and we will go further. Okay बेटा? तो बीच में इसको आप पॉज भी कर सकते हो. पॉज करके आप उसको नोट डाउन करके लो. There is no problem at all. You may do that. Okay? इसको हटा के मैं, आपने क्या क्या लिखा है हमने? फॉर प्योर रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये अपने डेरिवेशन में मत करो. नंबर 1 प्योर आर, क्या बोले? V and I इन फेज. हाँ. नंबर 2 प्योर L. प्योर L को क्या लिखा? V लीड्स करंट बाय पाई बाय 2. एंड 3 में प्योर C के लिए ये मैंने उल्टा लिखा, मतलब I lags the V by pi by 2, उसका उल्टा V leads the current by pi by 2. आपको समझ में आया होगा. ओके, सो V lags I by pi by 2. तो ये आपको ध्यान में रखना होगा. उसको ख्याल करने के बाद तो मैं अभी लिखने के लिए ये टोटल कैसे बन जाएगा? VL and VC are opposite. इसमें से क्या है? VL and VC are opposite. and VL और VC में VC का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है. VC is greater than VL. VC क्या होता है? ग्रेटर देन VL बन जाएगा. तो आपको दिखाने के लिए मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? ये बन गया मेरा VR और यहाँ पे उसका कॉम्पोनेंट मिल जाएगा. यहाँ से इस VC में से, इस VC को थोड़ा मैं ज्यादा लिखता हूँ मतलब आपको समझने के लिए. इस VC में से अगर मैंने VL को निकाला तो ये इसको मेरे को मिल जाएगा ये VC माइनस VL. ये क्या बन जाएगा आपका? VC माइनस VL. तो अभी इसको अगर मैंने पैरेललोग्राम लॉ ट्रीट किया इसको, तो मेरा क्या बन जाएगा? एक रिजल्टेंट बन जाएगा. एक रिजल्टेंट बन जाएगा और ये मेरे को मिल जाएगा फाई. ये क्या मिल जाएगा? फाई. और ये मिलेगा मेरे को V. बराबर. तो यहाँ पे दिखाने के लिए कैसे हो जाएगा? इन दोनों का मिला के मैं क्या करता हूँ? VC माइनस VL को इतना सा ड्रॉ करता हूँ. तो ये मेरा क्या बन गया? ठीक से ध्यान रखो मैं क्या लिख रहा हूँ. इसको बोल रहा हूँ मैं VC माइनस VL. इसको मैंने बोला VC माइनस VL. अब इनको मैं ड्रॉ करता हूँ ठीक से और जोड़ के अपना पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करता हूँ. तो क्या मिलेगा? What I will get over there? I will get one vector which is like this. Which is like this. This is the resultant. This is the resultant. उसको बोलेंगे हम V. तो अभी फ्रॉम द फेजर, तो ये आपको समझ गया अभी. तो और इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा मैं फाई. ये जो एंगल बनाया है, whatever is the angle made, that will be phi. Therefore, from the phasor, we can write V is equal to VR plus VC minus VL. फेजर को मैंने कैसे ट्रीट किया? फेजर को मैंने एक वेक्टर जैसा ट्रीट किया और उसमें से मैंने ऐसे लिखा
जो मैंने पहले VR प्लस VC प्लस VL आपको दिया था मैग्नीट्यूड में, अभी फेजर अप्लाई करने के बाद मेरे को समझ में आया कि VC एंड VL दे आर अपोजिट टू ईच अदर एंड आउट ऑफ दैट VC इज मोर देन VL, क्योंकि VC में डिनोमिनेटर में आता है C बराबर और न्यूमरेटर में आता है L, तो उसके लिए मैं इसको चूज करूंगा VR प्लस VC माइनस VL। अभी मेरे को दो वेक्टर मिल गया, पहला वेक्टर कौन है VR, तो इसको मैं वेक्टर का साइन दे दूंगा, फेजर में हम वेक्टर करते हैं ना, और ये भी बन जाएगा मेरा, ये एक वेक्टर बन जाएगा, ये भी मेरा वेक्टर बन जाएगा। तो अगर दो वेक्टर को मैंने ऐड किया तो ये बन गया मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वाइज ऐसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड एंड ये मैग्नीट्यूड बन जाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड लिखने के लिए आपको पूरा पैरेललोग्राम लॉ यूज करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ V विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा V इज इक्वल टू VR प्लस VL माइनस VC। लिखने के लिए यहां पे कैसे करूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ VR ब्रैकेट स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ VC माइनस VL ब्रैकेट स्क्वायर, दैट्स ऑल। ओके, और इसको लिखूंगा मैं, इसको क्या लिखूंगा? आई विल राइट ओवर हियर दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ V, इसको बोलेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ V। क्यों? बीच में, उनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का, cos 90 0 आता है, तो इसका पूरा कितना आएगा VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 VC माइनस VL इनटू cos 90, तो वो cos 90 चला जाएगा, इसीलिए दो परपेंडिकुलर वेक्टर को आपको वो सिखाने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बोर्ड व्हाट वी हैव डन एक्चुअली। अब ये करने के बाद अपन को निकालना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ V, that is resultant। तो डायरेक्शन ऑफ V रिजल्टेंट निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ में ही अपना tan phi करते हैं, tan phi। तो tan phi कितना आएगा? ये डायग्राम में phi sin phi अपॉन cos phi, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये बन जाएगा VR अपॉन VC माइनस VL, बन गया VR अपॉन VC माइनस VL। ओके, डिड यू गेट माय आइडिया? डिड यू गेट व्हाट आई मीन टू से? ओके, तो यहाँ पे नाउ वी विल गो टू कैलकुलेट एक्चुअली व्हाट हैपन्स विद द करंट। तो मैंने फेजर का सॉल्यूशन करके मैंने दो चीज आपको निकाल के दी। क्या दिया मैंने? V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL ब्रैकेट स्क्वायर, दूसरा tan phi इज इक्वल टू VR अपॉन VC माइनस VL, बन गया। आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, फटाफट इसको नोट डाउन करो, बाद में हम आगे के लिए जाएंगे, तो बेटा नोट डाउन करो फास्ट। हो गया बेटा? अभी हम आगे जाते हैं। आगे के लिए इसको नोट डाउन करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आगे के लिए इसको मैं हटा देता हूं। Now I will again start with whatever the formula we wrote, and then we will go further. Okay, तो बेटा ये तो अपन ने कर दिया, ठीक बन गया है ना बेटा। अभी हम जाते हैं आगे। सो वी हैव, क्या है अपने पास? V इज इक्वल टू VR प्लस VC माइनस VL, बन गया। बट V कितना है? V नॉट साइन ओमेगा t।
बराबर, V naught sin omega t. Also, ओके, ऑल्सो वी आर कैसे लिखा है हमने, आई नॉट इंटू आर. सिमिलरली वी एल कितना लिखा है, आई नॉट इंटू एक्सएल. एंड वी सी कितना लिखा है, आई नॉट इंटू एक्स सी. ओके, तो इसको हम बोलेंगे, इसको लिखने से ज्यादा अच्छी बात हम लिखेंगे, आई विल राइट V as I naught into Z. तो यहाँ पे हम we will define here. So here we have Z is equal to impedance. इसको क्या बोलेंगे, impedance बोलेंगे. जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है. तो सीरीज एलसीआर सर्किट में इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर का मिला के जो एसी रेजिस्टेंस मिलेगा, द टोटल एसी रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो आपको सर्किट में टोटल एसी रेजिस्टेंस मिलेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट. तो इंपीडेंस को हम क्या बोल सकते हैं, इंपीडेंस कैन बी रिटन एज टोटल एसी रेजिस्टेंस, क्या बोलेंगे, टोटल एसी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीरीज एलसीआर सर्किट. तो मेरा क्या बन गया, इंपीडेंस क्या बन गया मेरा, टोटल एसी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीरीज एलसीआर सर्किट. इसको आईएमपी लिख के लो, ये बन गया मेरा टोटल एसी रेजिस्टेंस offered by series LCR circuit. तो अभी putting the values, what I will get, I naught into Z will be equal to I naught into R plus, okay, एक मिनट, मैं क्या करता हूं, इससे ज्यादा अच्छा है अपना मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला ही लिख देता हूं, क्योंकि अपन को मैग्नीट्यूड चाहिए ना, वो इक्वेशन लिख के कुछ फायदा नहीं. वो इक्वेशन हमने लिया था ना, वो यूज करेंगे. सॉरी, सो आई नॉट इंटू जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ वी आर, मतलब आई नॉट इंटू आर, मतलब ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस आई नॉट इंटू सी का मतलब एक्स सी माइनस, सॉरी, आई नॉट इंटू एक्सएल ब्रैकेट्स के. तो सब जगह आई नॉट है, तो मैं आई नॉट को बाहर निकल सकता हूं, और रूट के बाहर आया तो फिर से वो आई नॉट बनेगा. तो आई नॉट अंडर रूट, ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स सी, यहाँ पे माइनस एक्सएल ब्रैकेट स्क्वायर. आई नॉट ने आई नॉट को काटा. तो बेटा यहाँ पे हमने एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज किया है और उसको डिराइव किया है, उसको बोलेंगे हम इम्पीडेंस. देयरफॉर फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस क्या बन जाएगा, फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस Z कितना बन जाएगा आपका, Z बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल ब्रैकेट स्क्वायर. So this is one of the very important formulae in your LCR series LCR circuit. इसको भूलना मत, कतई भूलना मत. ओके, ये बन गया आपका फॉर्मूला फॉर Z. also अपन के पास क्या है, also tan phi is equal to VR upon VC minus VL. Therefore tan phi क्या लिखूंगा मैं, I naught into R upon I naught into, I naught दोनों में भी कॉमन है, XC minus XL. I naught ने I naught को काटा, तो I will get lastly, therefore my tan phi, okay, tan phi और डेल्टा भी बोल सकते हो, R upon
XC minus XL. So this is also very important. तो ये दो फॉर्मूले हैं. अगर if you are knowing these formulae, then every circuit you will be able to understand. So beta, my dear students, what we have done. So up till now we have discussed series LCR circuit. So we have discussed the series combination of L, C and R connected together. मैंने क्या बताया? Total voltage will be V is equal to V naught sin omega t. Current will be I naught, peak value of current. Current को कितना लेने का? Peak value of current. ये होने के बाद इसका वोल्टेज कितना लिखेंगे? VL will be I naught into XL. XL is the inductive reactance. VC will be I naught into XC. XC will be capacitive reactance and VR will be I naught into R. That is the resistance offered by resistor. बाद में मैंने उनका फेजर ड्रॉ किया तो मेरे को पता चला कि VL for the inductor voltage lags behind the voltage leads the current. मैंने लिखा था इधर voltage will lead the current. तो ये इसमें से जितना वोल्टेज था उसको भी वो लीड करेगा. कैपेसिटर में क्या दिया था आपको? वोल्टेज विल लैग बिहाइंड द करंट, क्योंकि मैंने बेसिक फॉर्मूला क्या दिया था? आर के लिए करंट वोल्टेज इन फेज, एल के लिए करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, मतलब वोल्टेज विल लीड द करंट. और कैपेसिटर के लिए करंट लीड्स द वोल्टेज, मतलब वोल्टेज विल लैग बिहाइंड द करंट. तो एक में वोल्टेज आगे जाएगा, कितना जाएगा? π/2 से. दूसरे में वोल्टेज पीछे रह जाएगा, कितना? π/2 से. तो उनके बीच में कितना एंगल हुआ? 180 का एंगल हुआ, पाई का एंगल हुआ. अगर पाई है मतलब वो एक अलोंग द सेम लाइन है, तो एक वेक्टर उस साइड पे, एक वेक्टर इस साइड पे. अपन को देखना पड़ेगा कौन सा वेक्टर बड़ा, कौन सा वेक्टर छोटा. इसमें से VC बड़ा, VL छोटा. अगर VC बड़ा, VL छोटा, तो उनका जो रिजल्टेंट दोनों का मिलके आएगा, दैट विल बी VC माइनस VL. तो उसको मैंने लिखा VC माइनस VL. तो अभी आपको निकालना है रिजल्टेंट ऑफ VR, VC एंड VL, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट. तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए आपने लिया VR, आपने लिया VC माइनस VL, VC माइनस VL. तो क्या किया आपने? रिजल्टेंट विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन. तो देखो बेटा, अभी VR और VC माइनस VL, इनके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है. तो उसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ V विल बी रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 VR VC माइनस VL इंटू cos 90. तो cos 90 जीरो होता है, तो वो चला गया. तो बचा क्या? What is remaining is this V will be VR square plus VC minus VL ब्रैकेट स्क्वायर. अभी अपन ने इसका तोड़ निकाला. इसका तोड़ कैसे निकालेंगे? ये मैंने लिख के लिया था तीनों चीज. तो V को क्या बोलेंगे? What will call V? तो V को कॉल करने के लिए हमने लिखा I naught into some quantity that will be taken as the total resistance offered by this circuit, total resistance offered by the LCR circuit. तो उसको मैंने बोला Z. Z को क्या बोला मैंने? इम्पीडेंस बोला. Z को क्या बोला मैंने? इम्पीडेंस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो कभी भी आप AC का स्टडी करोगे, कौन सा भी सर्किट है, आपको LR सर्किट है, CR सर्किट है, LC सर्किट है, कौन सा भी, तो उसमें आपको लिखना होगा इम्पीडेंस. तो इम्पीडेंस किस चीज के डिपेंड करता है? तीन चीज पे. रेजिस्टेंस कितना ऑफर किया है इंडक्टर ने, रेजिस्टेंस कितना ऑफर किया है किसने? कैपेसिटर ने, और रेजिस्टेंस रेजिस्टर ने कितना ऑफर किया है. उन तीनों को मिला के, तीनों को जोड़ के आपको लिखना पड़ेगा Z. तो इसको लिखा मैंने Z. तो Z का मैंने डेफिनेशन कैसे किया? टोटल AC रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सीरीज LCR सर्किट. हो गया. तो Z का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसीलिए मैंने V के इक्वेशन में उनका वैल्यूज डाला. V की जगह I नॉट Z डाला, VR स्क्वायर की जगह I नॉट R ब्रैकेट स्क्वायर डाला, VC की जगह I नॉट XC डाला, VL की जगह I नॉट XL डाला. पूरा किया तो I got the idea Z will be root of R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL ब्रैकेट स्क्वायर. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. बाद में इसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा. In what direction the resultant is there? तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने tan phi निकाला. कैसे निकाला? VR tan phi ना, VR अपॉन VL माइनस VC. तो VR कितना? I नॉट R, VL माइनस VC, I नॉट इंटू XC माइनस
VC minus VL. So XC minus XL. तो ये बन गया R upon XC minus XL. So beta, this is the way in which we can calculate the phasor solution for the series LCR circuit. So I hope you have understood this. After this, next point will be your series LCR circuit, the analytical solution. So I will suggest you to note this down. After that, we will go for the analytical solution of series LCR circuit. So first note this down. Friends, now we will move towards analytic solution for the series LCR circuit. So we will write series LCR circuit and we will have analytic solution. Analytic means we will go with equation. Analytic means we will go with the equation and how that equation comes and how it will lead to giving out the equation for current in the LCR circuit and how we can find out the impedance and all. Okay, so we'll go for that. So let me draw first LCR circuit fast as early as possible. L, C and R. So it is made up of inductor, resistor and capacitor. L, C, R. I hope you are getting it. I will rewrite it in order to show it correctly. See this. Now what will happen? See, I have applied my AC source to that. So once again, we will go with the same terminology. Consider the AC applied to the series combination of inductor, capacitor and resistor. Now, in order to go for the analytic solution, we can write again total voltage as voltage across inductor plus voltage across resistor plus voltage across capacitor. Don't take here phasor solution. Don't be mixing this with the phasor solution. I am not taking anything about the phasor. I am just thinking about the voltage across inductor, voltage across capacitor and voltage across resistor. So initially I started V as V0 sin omega t, or you may write E is equal to E0 sin omega t. There is no problem. In series, current is constant, so I will write I is equal to constant. तो क्या होता है बेटा? So I have to explain, I have to rewrite this equation in the form of current multiplied by the AC resistance. If it is the inductor, it will be inductive reactance. If it is the capacitor, it will be capacitive reactance. If it is the resistor, it will be resistance of the resistor. So shall I start with that? Okay. So V will be VL. VL का मतलब आएगा आपका L di by dt plus VR will be IR plus VC will be कैसा आएगा बेटा? Q is equal to CV. So now V will be Q upon C. Okay. So now यहाँ पे बेटा Q upon C. So first of all, I have to convert this equation in only single variable, that is I. I have to convert this equation with single variable with I. तो ये कैसे करूँगा मैं? पहले लिखूँगा मैं IR plus अभी my I is dq by dt. Are you getting my point? I is dq by dt.
करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई विल राइट dq by dt. Okay, so what I will do, I will be dq by dt, so di by dt कितना आएगा बेटा, it will be d by dt of dq by dt. तो ये कितना बन जाएगा, d2q by dt स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे आपको समझा के देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर ने वो समझाया नहीं. ठीक से समझाता हूँ आपको. We have I is equal to dq by dt. तो बेटा therefore di by dt will be again the derivative of I is our dq by dt, that is d by dt of dq by dt. So I can write that to be d2q by dt square, the second derivative of the charge with respect to time is the second derivative of the charge with respect to time, and I is the first derivative of the charge with respect to time. So shall I write my equation as, first I will start with q by c, इसको भी ऐसा लिखते हैं q by c plus then IR. तो R into I को कैसे लिखते हैं हम, dq by dt plus L into d2q by dt square. So I got my equation to be like this. So in oscillation you have considered about the oscillator. So it is the equation of the oscillator. This is called as the second order differential equation. इसको क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो इसको कैसे लिखेंगे, फिर से लिखते हैं d2q by dt स्क्वायर 1 by L d2q, L d2q by dt स्क्वायर प्लस R dq by dt, इसी को ही रिराइट कर रहा हूं मैं, प्लस q और 1 by c into q is equal to your v. Getting my point? तो v को कैसे लिखेंगे, v नॉट साइन ओमेगा t. सो ये बन गया मेरा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दैट. ओके, सो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, तो सॉल्यूशन अभी इधर करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन डायरेक्टली लिखना है आपको, q इज इक्वल टू qm साइन ओमेगा t प्लस फाई. तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अगर ये इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन मैथमेटिक्स वी आर सॉल्विंग दैट, अगर मैंने सॉल्व किया, इफ आई सॉल्व दैट देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ q टू बी qm sin omega t plus phi, where q is the charge, qm will be peak value, omega t will be the phase, omega will be the angular frequency and phi will be the initial phase. So I'll start with my q is equal to qm sin omega t plus phi. So let's start with q is equal to qm sin omega t plus phi. You're getting my point? Okay. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओके तो पहले I लेते हैं, तो मेरा q बन गया qm साइन, फिर से लिख रहा हूं ओमेगा टी प्लस फाई. अभी फाई नहीं लेते, कुछ तो दूसरा एंगल लेते, नहीं तो फाई अपना आया था ना एक बार, तो इसको थीटा लेते हैं, यहाँ पे थीटा लेते हैं, यहाँ पे भी थीटा लेते हैं. तो सेकंड बन जाएगा मेरा आई कैसे आएगा, डी क्यू बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. तो मेरा आई कितना बन जाएगा, डेरिवेटिव, ओके साइन का कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, और ओमेगा टी प्लस थीटा का डेरिवेटिव ओमेगा, तो ये कितना बन जाएगा, क्यू एन ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा. ये बन गया मेरा आई. तो पहले मैंने क्यू निकाला, क्यू कितना आया, क्यू इज इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. सेकंड बन गया आई जब आई लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा. और नेक्स्ट आएगा मेरा डी आई बाई डी टी. डी आई बाई डी टी का मतलब क्या होगा, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ
क्या आएगा ये dq by dt। तो इसका आंसर आएगा ऐसा आपका di by dt विल बी d by dt। इसका भी डिफरेंशिएशन करने का, किसका, qm ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा, सॉरी ये बन गया मेरा इक्वेशन। अब यहाँ इसका आंसर कितना आएगा di by dt। आप समझ रहे हो बेटा? ओके, इसको हल्का हल्का नोट डाउन करते जाओ अपने नोटबुक में, जैसे आपका टाइम हो जाएगा। हाँ वैसे तो इसको qm ओमेगा को बाहर लेते हैं, qm ओमेगा cos ओमेगा t का माइनस, तो इधर माइनस साइन और इधर 1 मोर ओमेगा इंटू साइन ओमेगा t प्लस थीटा। तो ये कितना बन गया मेरा लास्टली di by dt विल बी माइनस qm ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस थीटा। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। ये बड़ा वाला डेरिवेशन है, बड़ा वाला इक्वेशन बन जाएगा, तो आपको वो हैंडल करने में दिक्कत आएगा। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। ओके, सो फर्स्ट नोट दिस डाउन एंड लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। तो चलिए बेटा, अब इसके बाद हम उसका स्टडी करते हैं, कैसे आएगा वो स्टडी करते हैं। तो ये बोर्ड पूरा लगेगा मुझे, तो मैं जो जरूरी चीजें हैं वो यहाँ पे लिख के लेता हूँ और जो जरूरी नहीं है उसको हटा देता हूँ, है ना बेटा? ओके, तो जरूरी चीज नंबर 1 क्या है? पहला मेरा क्यू कितना लेना है बेटा? qm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बाद में क्या लेना है? आई कितना आएगा? आई का वैल्यू मैंने निकाला है, qm ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस थीटा, और di by dt मेरे को चाहिए, di by dt कितना आएगा बेटा? माइनस qm ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा बेटा? साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, माइनस qm ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये बन गया मेरा 3 इक्वेशन। तो अभी जो मैंने इक्वेशन लिया था, जो मेरा बेसिक इक्वेशन था, बेसिक इक्वेशन क्या बन गया था मेरा? बेसिक इक्वेशन स्टार्टिंग विद बेसिक इक्वेशन, स्टार्टिंग विद क्या मेरा? v इज इक्वल टू l d2q by dt स्क्वायर प्लस r इंटू i मतलब dq by dt प्लस 1 by c इंटू q, ये बन गया। ओके, देयरफॉर आई कैन राइट v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t। तो बाद में लिखेंगे वो कैसे आ गया? l। अभी मेरा d2q by dt स्क्वायर कितना आ गया? ये मेरा आ गया माइनस qm ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस थीटा, ये एक बन गया। मतलब क्या मैं इसको इकट्ठा करके ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? माइनस इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं मैं, तो ये है सब अपना, इसको l से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो l माइनस l ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर l qm, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर l qm साइन ओमेगा t प्लस थीटा, ये बन गया मेरा एक, प्लस सेकंड वाला r इंटू dq by dt मतलब i, dq by dt मतलब i, सो qm r ओमेगा और ओमेगा r qm cos ओमेगा t प्लस थीटा बन गया, प्लस ये मेरा qm साइन ओमेगा t प्लस थीटा। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है अपना, तो इसमें से पहले में जो कुछ है उसको थोड़ा सा, और हाँ इसको मैंने अपॉन c, तो यहाँ पे क्या आएगा? qm अपॉन c आएगा। तो मेरे को एक चीज और मालूम है, क्या मालूम है? मेरा xl है वो ओमेगा l है, एंड माय xc इज 1 बाय ओमेगा c। तो यहाँ पे अगर मेरे को I want to calculate or I want to express this in the form of xc, and if I want to express this in the form of xl, then यहाँ पे ओमेगा l है ऑटोमेटिकली, तो ये मेरा ओमेगा l बन जाएगा। यहाँ पे मेरा ओमेगा नहीं है, तो क्या मैं इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करूं, ओमेगा से डिवाइड करूं, जो मेरे को क्या दे देगा? तो यहाँ पे भी मैं ये जो ओमेगा स्क्वायर लिखा है इसके चलते इसको मैं क्या करूंगा? ओमेगा इंटू ओमेगा एल बताता हूं।
तो मैंने क्या क्या स्टेप लिया आपको ध्यान में रखना है। तो इसके चलते इसको और इसको मैं XL और XC से चेंज करूंगा। ओके, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? तो V विल बिकम माइनस ओमेगा XL इंटू QM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस ओमेगा R इंटू QM कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस ओमेगा इंटू XC QM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहां पे कॉमन चीजें ढूंढ के उनको बाहर निकालें। कॉमन चीज क्या है बेटा? ओमेगा QM ओमेगा QM ओमेगा QM बन गया बेटा। तो मैं QM ओमेगा को बाहर निकाल सकता हूं, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो मेरा क्या बन जाएगा? QM इंटू ओमेगा अंदर में माइनस XL साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बराबर प्लस R कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस XC साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इक्वेशन बन गया, पूरा बन गया, बाहर बन गया QM ओमेगा। आया समझ बेटा? ये अब इसके आगे इसमें से भी अगर आप देखोगे तो ये साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कॉमन आ सकता है। देन व्हाट आई कैन डू फॉर दैट? देन आई विल गो फॉर V इज इक्वल टू QM ओमेगा, इसको पहले लिख के लेता हूं, R cos ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस इन दोनों में कॉमन कौन है? साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और ये XC और ये माइनस XL। तो क्या मैं लिख सकता हूं? XC माइनस XL साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बन गया इक्वेशन? तो बन गया अपना एकदम 2 मिनट में बन गया इक्वेशन। तो ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको नोट डाउन करके नोटबुक में लिख लो। यहां तक अगर कुछ डाउट है देन यू मे आस्क मी ऑन माय पर्सनल नंबर, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये बन गया मेरा कॉमन इक्वेशन फॉर वोल्टेज। तभी क्या करते हैं इसका भी समझ के लेते हैं, व्हाट वी विल डू अबाउट दैट। समझ गए बेटा? तो फिर से आपको मैं बताता हूँ क्या किया मैंने, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। Q का वैल्यू लिया QM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, I का वैल्यू लिया QM ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, DI बाई dt का वैल्यू लिया मैंने, मतलब d2q बाई dt स्क्वायर माइनस QM ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और इस इक्वेशन में L d2q बाई dt स्क्वायर प्लस R dq बाई dt प्लस 1/c इंटू q, इस इक्वेशन में डाला। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा ओमेगा स्प्लिट किया, और यहाँ पे ओमेगा नहीं था उसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और जहाँ पे ओमेगा L है वहां पे मैंने XL लिखा, और जहाँ पे ओमेगा C 1/ओमेगा C है वहां पे मैंने XC लिखा। तो मेरा इक्वेशन बन गया, QM ओमेगा को कॉमन निकाला, QM ओमेगा आई हैव टेकन कॉमन, देन आई हैव टेकन कॉमन sin ओमेगा t प्लस थीटा इन दिस एंड आई हैव रिटन दिस इक्वेशन। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गया अपना। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग, तो अभी आपको ओके अभी आपको एक इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे दूसरा स्क्रीन, आपको स्क्रीन मतलब स्क्रीन यही रहेगा, एक दूसरा खोल के दिखाता हूं। साइन A प्लस माइनस बी क्या आता है बेटा? साइन A कॉस B प्लस माइनस कॉस A साइन B। Are getting my point? तो यहां पे आपका cos B मिला है आपको, sin A cos B, और यहां पे क्या मिला है? cos A sin B। समझ गए? तो यहां पे मैं दो और कांस्टेंट ऐड करता हूं, मतलब यहां पे sin है, इसको cos बोलना पड़ेगा, यहां पे cos है, इसको sin बोलना पड़ेगा। ओके, सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। थोड़ा नोट डाउन किया इसको,
इसके साथ साथ अपन को और एक फॉर्मूला याद है, cos a प्लस माइनस बी, वो भी हम चेक करते हैं। cos a प्लस माइनस बी में क्या है, cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b। तो यहाँ पे कौन सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो। शायद अगर आपने ये मेथड यूज किया तो भी चलता है, ये मेथड आपने यूज किया तो भी चलता है। हमारे बुक में cos का मेथड दिया है, पहले मैंने आपको sin का बताया था, लेकिन अपने एनसीईआरटी में cos लेके उन्होंने मेथड शेयर किया है। तो आई विल टेक द मींस आई विल बी टेकिंग cos a प्लस बी फर्स्ट, बिकॉज जो बुक में दिया है वो फॉलो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, sin a प्लस बी लेने से भी आपको आंसर आएगा, खाली फर्क क्या आएगा, यहाँ पे cos है तो यहाँ पे आप sin ले लोगे, और यहाँ पे sin है यहाँ पे आप cos ले लोगे। अपन के केस में यहाँ पे cos है cos b है, यहाँ पे sin है sin b है, तो यहाँ पे अपन को लेना पड़ेगा, यहाँ पे इसके साथ cos लेना पड़ेगा, इसके साथ sin लेना पड़ेगा। लेकिन अपने पास ये QM ओमेगा आ गया, लेकिन एक चीज बच गया है, वो क्या, यहाँ पे कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे R दिख रहा है, यहाँ पे XC दिख रहा है, यहाँ पे XL दिख रहा है। उसका कॉमन मैंने क्या बताया था, तो कॉमन मैंने बताया था आपको Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर। तो वो अपन को Z यहाँ पे इस इक्वेशन में डालना होगा। तो मैं कैसे कैसे रीअरेंज करता हूँ इक्वेशन को, तो QM ओमेगा इंटू Z, सबको Z से मल्टीप्लाई किया, अभी क्या बच गया, Z से डिवाइड करेंगे, तो इंटरनली उसको डिवाइड करता हूँ, R बाई Z cos ओमेगा t प्लस थीटा प्लस XC माइनस XL अपॉन Z, ओके, साइन ओमेगा t प्लस थीटा। ओके, अभी ये cos ओमेगा t प्लस थीटा है, तो इसको मैं एक ये बोलता हूँ, अपना फाई बोलता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे फाई नहीं लिया, तो आई विल टेक फाई। तो cos के साथ cos आना चाहिए, therefore let cos phi is equal to r by z। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, r को हम z cos phi से रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप बोलोगे सर z ही क्यों लिया, इसीलिए मैं आपको ये करके दिखाया, बाद में वो वही होने वाला है। और यहाँ पे sin ओमेगा t प्लस फाई, तो sin phi लेते हैं, sin phi को मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा ना ये दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है, हटा देता हूँ इसको, ठीक से लिखता हूँ, एवरीथिंग मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। लेट क्या मैंने देखा, r बाय z इज इक्वल टू cos phi इम्प्लाइज क्या बन जाएगा, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, और एंड XC माइनस XL अपॉन z इज इक्वल टू sin phi। तो आप पूछोगे सर ऐसे ही क्यों लिया और ये cos का ही क्यों लिया, तो इसका भी आंसर मेरे पास है, इसका भी आंसर मेरे पास है। आपका tan phi कैसे आता है, tan phi आता है आपका r अपॉन XC माइनस XL, तो अगर sin अपॉन cos किया तो r बाई z, तो यहाँ पे कैसे आएगा, therefore sin phi अपॉन cos phi विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, sin phi मतलब r बाई z डिवाइडेड मतलब उल्टा मल्टीप्लाइड z अपॉन XC माइनस XL, z ने z को काटा, ये मेरे को मिल गया tan phi, मिल गया tan phi ये और tan phi ये, चेक करके लो, r अपॉन XC माइनस XL, r अपॉन XC माइनस XL हो गया, इसीलिए मैंने उसको ऐसे लिखा। ओके, सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। अभी हम इसका इक्वेशन का अरेंजमेंट आगे जाके करेंगे, ठीक है बेटा, तो ठीक है, आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, फटाफट नोट डाउन करो। ओके बेटा, तो अभी आगे जाते हैं, आगे में क्या करेंगे बेटा, इसको अभी फिर से लिख के लेते हैं, इसको फिर से लिख के लेते हैं, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये इक्वेशन को मैं ऐसे ही रखता हूं, तो मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा, therefore v is equal to qm ओमेगा इंटू z इंटू ब्रैकेट, हाँ r बाय z क्या, cos phi, सो cos ओमेगा t प्लस थीटा इंटू cos phi प्लस sin ओमेगा t प्लस थीटा इंटू sin phi, सो cos a cos b cos a cos b
प्लस साइन ए साइन बी, तो ये बन जाएगा cos a माइनस बी। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? cos a माइनस बी। सो v इज इक्वल टू qm ओमेगा इनटू z विल बी cos, इसको भी हटा देता हूं, डायरेक्टली लिख देता हूं, cos ओमेगा t प्लस थीटा माइनस फाई। ओके, तो अपना अभी थीटा माइनस फाई ये अपना फेज बन जाएगा, इनिशियल फेज। सो गिवन इक्वेशन आई कैन राइट, ओके, देयरफॉर आई कैन राइट v इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे v नॉट cos ओमेगा t प्लस थीटा माइनस फाई। So where my peak value of voltage will be this, v is equal to I R। तो यहाँ में v नॉट क्या मुझे मिल गया? qm ओमेगा इंटू जेड। तो qm ओमेगा, अगर ये z मेरा इम्पीडेंस है मतलब ये रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, और ये qm ओमेगा है ये मेरा करंट जैसा काम करेगा। ये बन जाएगा I नॉट और ये z। तो मेरा I नॉट का वैल्यू कितना बन गया? तो यहाँ से मैं I नॉट लिख सकता हूँ, मेरा I नॉट बन जाएगा qm इंटू ओमेगा। अभी आपको समझ में आया होगा, ओमेगा को मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताया था, तो यहाँ पे अगर ओमेगा को मैंने 2 पाई अपॉन टी लिखा तो मेरे को करंट मिल रहा है डायमेंशनली। 2 पाई तो कांस्टेंट है, qm चार्ज अपॉन टी, टी इज टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, मेरे को करंट मिल गया। सो इन दिस वे we can populate the equation for the analytic solution, and that was about getting voltage in the form of v is equal to v naught cos omega t plus theta minus phi। तो यहाँ पे अपन को अभी बाउंड्री कंडीशन डालना पड़ेगा। बाउंड्री कंडीशन डालने के बाद we will analyze this and separately we will analyze for inductor, resistor and capacitor। तो वो एनालाइज करने के बाद अपन को इसका वैल्यू मिल जाएगा। ये सॉल्यूशन तो मिल गया है, QM वाला सॉल्यूशन मिल गया, और दिस इज कॉल्ड एज द एनालिटिक मेथड। सो व्हाटएवर वी हैव टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट थिंग, that of course we will discuss in the tomorrow's lecture। So tomorrow's lecture we will continue with this equation and then we will go for power in LCR circuit, that is the power factor। We can go with the power factor। तो इसको ही हम थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करके यहाँ से बाउंड्री कंडीशन डालेंगे। तो एक आएगा cos ओमेगा थीटा माइनस फाई को हम बाउंड्री कंडीशन डाल के उसको cos फाई, ये एक अपना फैक्टर उससे अलग सा निकालेंगे। तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा डायरेक्टली लिखा है मैंने, आपको आने के लिए, आपको वो डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको वो यूज करने के लिए इसको पॉपुलेट करके इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करके इसको रीअरेंज करने के बाद अपन को मिल जाएगा cos phi, and that cos phi is 100% very important for each and every power factor, for each and every exam, and for AC this chapter very important is the power factor, power in AC circuit। What is the power consumption for the pure inductor, what is the power consumption for the pure resistor, what is the power consumption for the pure capacitor, and what is the power consumption cumulatively for the series LCR circuit, that we can get from the power factor which is called as the cos phi। So that we will learn in the next lecture। So today we will end up with this, and I'm thankful to you, all of you, for watching my lecture, and I hope everybody have understood this. Any doubt is there, any query is there, then you may ask on my personal number, and study sincerely, stay home, stay safe, stay tuned with physics। Okay, bye bye।